Hi, good evening, all of you. We will be starting today with the third section of the topic solutions, which is known as vapor pressure and Raoult's law. This unit is going to connect our next two units of the topic, that is fourth and fifth, which are about what is known as colligative properties. So, if you follow all the basic concepts today, then your next two lectures will be very easy for you. So, please focus in this whole section very clearly. We will start learning about the term here, the new term called vapor pressure. Perhaps in physics you might have heard this term, but here we are going to do it in much more greater details. So let us understand what is vapor pressure. The technical definition goes like this. Vapor pressure is at a given temperature, is the pressure exerted by vapors of the liquid, which is in equilibrium with the liquid itself. It's a little bit confusing definition. We will break it down part by part by understanding what is the process over here. The mechanism of vapor pressure or process of developing vapor pressure can be seen in three steps. Step number one is, first of all, whenever you take a liquid, there is bound to be an evaporation going to take place. So imagine this: in this particular glass bulb, you are taking some liquid, and from the surface of the liquid, molecules start evaporating. We have this particular manometer tube connected here, which is measuring the pressure. Ignore that part, just focus on what happens to the liquid here. Number two is, whatever vapors have escaped, there is a chance that after some time they will start condensing back. Now, this is going to take place simply because the whole system is closed. Imagine if this system was an open system, these vapors would have straight away escaped. We are not allowing it here because we want to measure the vapor pressure. So stage number one was evaporation. Liquid got converted into vapors. Stage number two, vapors now started condensing back into the liquid. Since overall, as I said, the system is a closed system, after some time, there will be an equilibrium created. So rate of evaporation will be equal to the rate of condensation. In simple terms, the amount of vapors collected will become now finalized. It will neither increase, it will not decrease. Now at this moment, whatever vapors are collected here and whatever pressure they exert is known as vapor pressure. So free vapors which are present above the liquid produced by this particular equilibrium is known as vapor pressure. Those vapors will exert a pressure on the liquid. Now come back to the definition again and see if you have now followed it. Vapor pressure of a liquid at a given temperature is defined as pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid at that temperature. I hope everyone must have followed the definition after this whole explanation. Now, this vapor pressure, what we give as a technical definition, it has a very simple meaning also. The simple meaning of vapor pressure is escaping tendency of a liquid. Whenever you hear a term vapor pressure, in your mind, you translate it as escaping tendency. That means whatever liquid we can see, it will start escaping from the surface. For example, where you are sitting right now, suppose somebody drops some water on your floor. Now that water obviously will start escaping from the surface. That is the tendency, what we call as vapor pressure. Here also same thing is happening, but only we are closing it and measuring it. Now, depending on vapor pressure value, higher or lower, substances can be classified also. So in this first slide, any other doubt? For exams point of view, you must know the definition and process. Diagrams only for explanation, not needed in exam. लेक्चर चाललंय
based on these classifications, I will say factors. Let us see now affecting vapor pressure. There are four factors which we see. Number one, the solvent. Which solvent are you taking for experiment? That will of course have a different value of vapor pressure. What solute have you added in the solvent? Number three, how much solute have you added? Concentration, dilute or concentrated. And fourth, very important, very basic factor, at what temperature are you doing this experiment or recording the vapor pressure? We have to see this in detail, all the four factors. First one, the solvent. Now this solvent which we have, if has higher vapor pressure, it will evaporate fast. Now just now as I said, आप लोग अपने दिमाग में क्लियर करो वेपर प्रेशर एस्केपिंग टेंडेंसी. तो अभी आप वैसे रीड करके देखो, हायर एस्केपिंग टेंडेंसी will evaporate very fast and they will be called volatile solvents. We say in our Indian language the liquid उड़ जाता है. Spirit, for example, if you pour anywhere, it will just evaporate very fast. So that is what we call as vapor pressure, right? Next examples are given here: ethyl acetate, alcohol. So they will be the volatile solvents. Next we have is opposite, lower vapor pressure, lower escaping tendency. They will evaporate slowly. They will be obviously called non-volatile solvents. So just to summarize, the solvents with higher vapor pressure can escape faster and they will have low boiling point. Now in daily language or in daily use in even laboratory, this volatile and non-volatile, there is a simple discrimination done. What they say is they compare it with water. Solvent, the boiling point above 100 degree are practically called non-volatile and less than 100 degree is called volatile. Do not ask me a question at 100 degree, what do you call it? As I said, this is just a rough classification done just to quickly summarize them. Of course, technical definitions are these two. And you can see at 100 degree, that means water actually falls under non-volatile, right? So for example, ether has a boiling point of around 35 degrees Celsius and alcohol, which has a boiling point of ethyl alcohol, 78 degree. So if I say sentences like this, ether and alcohol both are volatile, but alcohol is less volatile than ether. So ether का boiling point और भी कम है, तो वो और ज्यादा volatile है. So this was about first factor, solvent. So this is even sanitizers, right? Sanitizer contains alcohol finally. All Yeah. sanitizers, deodorants, perfume, finally all contains alcohol only. So that This is is why also they can ester also. esters is fragrance. And to dissolve ester, what they use is alcohol. alcohol. Ester will give you fragrance, correct? Right. And other chemicals are there. There is isopropyl alcohol, which will help you to give you the pumping action. So what we have, that spray. So the pumping action happens due to isopropyl alcohol. Propellant it is called. But all of them can evaporate from our skin very fast. So depending on what alcohols they are using, they use in advertisement that the action of deodorant will last long for 12 hours and ये जल्दी उड़ जाएगा, ये जल्दी उड़ नहीं जाता है. All these things what they say in advertisements, they're all talking about volatile nature of the solvents used. Half of your advertisement you can analyze with chemistry. Next, nature of the solute added. Now this is also going to be almost similar only. One is volatile solute. Now imagine for all these things, you can imagine one single solvent, water. So हम लोग solvent का boiling point fix करते हैं 100 degree and see now what happens. Volatile solute. So what will happen is you have taken suppose acetone added in water. अभी acetone का boiling point है कुछ 58 degree. So definitely वो water से ज्यादा evaporate हो जाएगा. So उसका जो vapor pressure है वो acetone के वजह से ज्यादा होगा. So water का evaporation slow, but solute ka evaporation faster. So that is one case.
Second, you have added something like glucose or sucrose. So here water is not going to much evaporate. Glucose तो evaporate होने का chance ही नहीं है. So this is non-volatile. Third, ऐसे solutes जो dissolve होने के बाद dissociate हो सकते हैं, जैसे acetic acid. CH3COOH can break down into acetate ion and H plus ion. So the number of particles will increase. We added one acetic acid molecule, but created were two due to dissociation. In unit number 5, we are going to talk more about the C and D part. Association. Two molecules can join to give you one unit. Like in benzene, acetic acid can associate to form a dimer. Two molecules are linked. So they also change the behavior of vapor pressure. So these are the 4 different types. Third, we have concentration. And as concentration of the solute increases, vapor pressure will decrease. We will talk about this more with even mathematical equations later. Now, another simple but important factor, temperature. Temperature increases, vapor pressure will increase. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा ट्रांसलेशन वाला वर्ड यूज करके देखो. Escaping. As temperature increases, escaping tendency increases. So imagine करो वाटर आपने रूम टेम्परेचर पे रखा है, उसका इवेपोरेशन आराम से चल रहा है. अभी आप यही वाटर बर्नर पे रखो, टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा एंड सून वाटर विल कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. अभी आप किसी भी एक सब्सटेंस के पास ध्यान दो, जैसे वाटर, you can see vapor pressure is parabolically increasing here, and at this temperature, check the pressure of the liquid here, 760 millimeter or 760 torr. That is, you can record as boiling point. So इस temperature पे water liquid has converted itself into vapor. This is called boiling point of the liquid. So आप लोग स्कूल में बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन देते थे? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स. ये अभी छोटे बच्चों का डेफिनेशन हो गया. अभी कॉलेज में टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है? ये वाला जो आप सामने देख रहे हो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. अभी आप 8-9 स्टैंडर्ड बच्चों के साथ बात करो तो वो डेफिनेशन बताना, लेकिन अभी आप लोग और किसी के साथ बात कर रहे हो तो यू हैव टू टेल यू दिस डेफिनेशन ओनली. डोंट से द लोअर लेवल सिंपल डेफिनेशन. यहां तक कुछ भी डाउट, एनी प्रॉब्लम? परफेक्टली क्लियर. चारों फैक्टर बोलो. So why do we consider only non-volatile solute in the third? अपने सिलेबस में है, अपने सिलेबस. हम लोग वोलाटाइल भी करने वाले हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में है अपने को. दोनों है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल. लेकिन वोलाटाइल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, दैट वी आर गोइंग टू डू थ्रू व्हाट इज नोन एज राउल्ट्स लॉज. हम लोग उसके लॉ करने वाले हैं, इक्वेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ करने वाले हैं. वी हैव बोथ द केसेस, नॉन वोलाटाइल एज वेल एज वोलाटाइल. Okay, sir. यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि वो पूरा टॉपिक वही है इसके लिए. Before we go ahead now, we take up another term called partial vapor pressure. Now this term comes actually from Dalton's law, what was there in 11th standard. When you consider mixture of gases, every constituent gas will have its own vapor pressure. और वो सब वेपर प्रेशर का टोटल ऐड करेंगे तो अपने को गैस का प्रेशर मिलेगा. So that individual pressure what every constituent gas applies is called partial vapor pressure. But they consider that this vapor pressure you can measure if provided the gas was alone. That of course is not there because right now it's in mixture form. इसका symbol वो लोग लिखते हैं P degree और P naught. And partial vapor pressures are additive. So suppose I take nitrogen plus oxygen. नाइट्रोजन का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर. सो दोनों का मिक्सचर का प्रेशर होगा 3 एटमॉस्फेयर. दे आर एडिटिव. सो इंडिविजुअली स्टिल दे रिमेन सेम. एंड दिस इन फैक्ट इज व्हाट वी कॉल एज Dalton's law.
go through this. Any doubt you can ask me. We are going to use this term for entire remaining lecture. So vapor pressure and other pressure, partial pressure, sorry, Same thing. partial vapor Same thing. pressure, Same thing. same thing only. Same thing. Same thing. Partial vapor pressure means partial vapor pressure. Both are same terms. So all these things were studied for the first time by this gentleman, Franco Mary Raoult. This person spent his almost entire life, entire career only studying vapor pressure. इसने लाइफ में मतलब दूसरा ज्यादा कुछ डिस्कवरी किया भी नहीं है. जितना आज हम लोग को पता है वेपर प्रेशर के बारे में, इक्वेशंस, whatever behavior is only because of this single person. He has dedicated his entire life to only one phenomena. He discovered several laws. उसमें से हम लोग 2 लॉ करने वाले हैं. बाकी के लॉज और हायर लेवल के हैं. They are not in our 12th standard syllabus. They are studied at higher level. केमिकल इंजीनियरिंग में राउल्ट्स लॉ बहुत यूज होता है because this controls lot of processes in chemical industry. सबसे पहला है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट. केस नंबर 1. आपको ये टाइटल ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जब आपको स्टेटमेंट आएगा तो वो लोग ये मेंशन करेंगे राउल्ट्स लॉ कौन सा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट. नंबर 2 करेंगे वो अलग है इसके लिए. तो रिमेंबर द टाइटल्स. So the statement goes like this: at a given temperature, partial vapor pressure of a solvent over a solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. Let us see this mathematically. Perhaps you will find it more easy. Vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of the solvent itself, which we called as partial vapor pressure, multiplied by the mole fraction of the solvent. Let us revise few things here before we go ahead. That is about the terms mole fraction and related things. क्योंकि आज हम लोग को ये बहुत लगेगा. Imagine we have 2 components with us. So let us assume this way, that in a mixture you are taking component 1 and component 2, and we know about its number of moles of each component. So इसका number of moles है N1, इसका moles है N2. Okay, I will still go at lower stage so that you know उसमें भी कुछ doubt है तो वो भी clear हो जाएगा. Imagine substance 1 का mass है आपके पास W1, इसका mass है W2. They have their individual molar masses as M1 and M2. So now we calculate number of moles. So number of moles calculate कैसे होते हैं? Mass, given mass upon molar mass. Given mass upon molar mass. So now we calculate mole fraction. So mole fraction is given as x1 equal to n1 divided by N1 plus N2 n1 plus n2, and here x2 is given as over n2 upon N1 plus N2. n1 plus n2. Everyone remembers this. ये हम लोग ने 11th में भी किया था, उसी का रिवीजन है. And total of 2 is going to be always 1. Now you need to remember this very well, should not forget it at all, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग को मोल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है. So I will suggest you take a screenshot of this. So in a numerical problem you might need to calculate this. So कभी कभी आपको नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दे सकते हैं तो आपका प्रॉब्लम थर्ड स्टेप से चालू होगा. अगर आपको ज्यादा काम करवाना है तो वो लोग मास अलग से मोलार मास दे सकते हैं. They will tell you to calculate this. Depends on a problem. So I have given you all the possible steps. I hope the terms are clear. Now with more knowledge come back again what we said. Partial vapor pressure of a solvent over solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. शायद mathematical term आपको बहुत easy लगेगा. Vapor pressure of solution is equal to
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। हमेशा कोई भी टर्म, कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर स्टेट में होता है तो उसे हम लोग पी डिग्री लिखते हैं। तो ये सॉल्वेंट अगर सिर्फ अपना खुद का एक सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ये है। जब वो सॉल्यूशन बन गया तो ये है सॉल्यूशन। तो देखो इस पूरे टर्म में आपको सोल्यूट कहीं पे भी नहीं दिखेगा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट्स द रीजन? Uh, सोल्यूट्स It's वेपर प्रेशर इज non-volatile. नॉट कंसिडर्ड, इट इज नॉन वोलाटाइल। मतलब वो खुद एस्केप नहीं होने वाला है, तो फिर वेपर प्रेशर उस पर कैसे डिपेंड होगा? सो वेपर प्रेशर विल ओनली डिपेंड ऑन दैट सब्सटेंस विच इज गोइंग टू इवेपोरेट। सो इमेजिन दिस वे कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है, वाटर, सॉल्वेंट प्लस ग्लूकोज इसका। तो ग्लूकोज इज ऑब्वियसली नॉन वोलाटाइल। तो अभी इसमें जो इवेपोरेट होगा वो कौन होने वाला है? इवेपोरेशन विल टेक प्लेस ऑफ ओनली वाटर। तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज इस तरह से तो इवेपोरेट नहीं होगा, वो तो पूरा डिसॉल्व है। तो अभी देखो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन लिखा हम लोगों ने? Mole मोल fraction फ्रैक्शन ऑफ solvent. सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय Partial pressure of solvent. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मैं और सिंपल टर्म्स में आपको लिख के दे रहा हूं। इसी को हम लोग ने लिखा इक्वेशन में, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्यूरिटी के लिए हम लोग लिखते हैं डिग्री, प्योर ऑफ सॉल्वेंट। एनीबडी स्टिल हैज अ डाउट अबाउट दिस? आप अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप ये एग्जांपल उसमें ऐड करो। ये है केस नंबर 1 राउल्ट्स लॉ का, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का सॉल्यूशन। एकदम दिमाग में क्लियर करो, ये आपका सबसे पहला राउल्ट्स लॉ का केस है। और ये इक्वेशन, इस पर आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम्स नहीं आती, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका हायर लेवल और एक है, इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। So solvent can be anything. मोस्टली अपने सिलेबस में हम लोग मोस्टली वाटर ही लेते हैं, बट इट कैन चेंज, ऑफ कोर्स इट कैन चेंज। दे कैन गिव यू बेंजीन, एसीटोन, जो लेंगे नो प्रॉब्लम। So जो sir, रहेगा उसका वो लोग वैल्यू देंगे आपको। लेकिन मोस्टली हाँ बोलो बोलो यार, व्हाट यू सेड? sir, if whatever is solute you put, the pressure of the solution will be same only, na? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, हाँ मतलब यू मीन टू से ग्लूकोज का इफेक्ट इस पे कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन यू मीन टू से। Yes sir. लेकिन मोल फ्रैक्शन भूलना मत, उसका वैल्यू है ना कुछ। और ग्लूकोज का, अच्छा हाँ। देखो मैं और डिटेल में दिखाता हूँ। ये वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस ग्लूकोज। दिस वैल्यू इज नॉट 1 इफ यू आर इमेजिनिंग दैट वे। Yes हाँ। गॉट इट? तो ये मैं थोड़ा और डिटेल में दे रहा हूँ आपको। तो देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, देखो। सो दिस विल हैव सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका जो वैल्यू ओरिजिनल था। तो वैल्यू इज नॉट इक्वल, करेक्ट? गॉट इट? So only mole fraction is different, ना? yes, it's calculated for mole fraction, no other terms, concentration और कोई टर्म्स में नहीं आता है। जिनको चाहिए, अब ये अपडेटेड है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, अपडेट दिस। ये पूरा टॉपिक अभी फॉर्मूला बेस्ड है, सब कुछ मैथमेटिकल ही है। सो बेटर यू मेक अ समरी ऑफ ऑल योर फॉर्मूले। इस पे प्रॉब्लम्स ही आते हैं, थियरी कुछ आता ही नहीं है बिल्कुल। एचएससी में सिर्फ स्टेटमेंट का थियरी आ सकता है, अदरवाइज एचएससी में भी इस पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। सो थियरी इज मिनिमम ओवर हियर। नाउ विथ एवरी राउल्ट लॉ वी डू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इसका ग्राफ इस तरह से है। अभी देखो ये ग्राफ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग इन डिटेल। वेपर प्रेशर इज प्लॉटेड हियर एंड दिस एक्सिस यू सी वेरी केयरफुली, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लॉटेड फ्रॉम 0 to 1। किसी भी सब्सटेंस का पेयर में मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब है दूसरे वाले सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 है। Did you understand what I said? Are you paying attention? If
in a component, two components, mole fraction of solvent becomes equal to 1, mole fraction of solute will be equal to 0. 0. जिनको अभी तक कुछ समझा ही नहीं या फिर लोग सो रहे खाली वीडियो ऑन करके, उनके लिए बता रहा हूं. x of solute plus x of solvent has to be equal to 1. So So if I one of them say, is already 1, the other has to be 0. if I am saying in the graph this is 1, obviously this has to be 0. So ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं वो कौन से तरह का ग्राफ है? देखो, द मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट. द मीनिंग हियर इज, हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिया है सॉल्वेंट का, वो हम लोग ने 0 से चालू किया है उन्होंने ग्राफ में और 1 तक गए. इसका मतलब है इस पॉइंट पर सोल्यूट इज एब्सेंट. और इस पॉइंट का मतलब कोई बता सकता है मुझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0. Both is not there. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0. Solute is the only thing there. सोल्यूट इज मैक्सिमम Maximum. 1. ऐसे कंडीशन में हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका, तो वो ग्राफ अपने को इस तरह से कुछ मिलता है. तो अभी देखो ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है, वाई एक्सिस. अभी इसका मीनिंग देखो, ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? ये पॉइंट पर आपका सोल्यूट एब्सेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. तो ये वैल्यू है किसकी? P0 की वैल्यू है इसकी. See if you technically understand this graph. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे ग्राफ और कॉम्प्लिकेटेड होने वाले, दो कंपोनेंट सिस्टम के. थिंक ओवर इट. आई विल शो यू द ओरिजिनल ग्राफ इफ यू वांट. 0. Wait, what happened? 0 indicates we started with some solution which was only solvent, only solute, and then we started making a solution, making it dilute and dilute and dilute and dilute, and finally we took only solvent. So we started with highly concentrated solution and we went to highly dilute solution, practically no solute. तो तभी अपने को जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट का ही होगा, उसमें सोल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं है. So vapor pressure changes linearly from 0 to the vapor pressure of pure solvent. Everyone agrees with this? Everyone followed this? So sir, vapor pressure will be the maximum with no solute, na, in it. That means other component is not there. I can put it this way. The moment you put a solute in it, vapor pressure decreases. Am I right? Yes, sir. So ये जो पहले के पॉइंट्स है, इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर मेरा कम हो गया सॉल्वेंट का, और जब वो अकेला था, अलोन प्योर सॉल्वेंट, इट शोड द मैक्सिमम वेपर प्रेशर. ये फैक्टर हम लोग ध्यान में रखेंगे यूनिट 4 में, और इसको हम लोग टेक्निकली नाम देंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. व्हेन यू ऐड अ सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस. चलो, वी कम टू दी सेकंड लॉ नाउ, सेकंड राउल्ट्स लॉ. आज के लेक्चर में 2 राउल्ट्स लॉ करेंगे, और एक लॉ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे, वो यूनिट नंबर 3 में करेंगे, 4 में, सॉरी. अभी ये देख लो क्या है. फॉर मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट्स, 2 सब्सटेंस मिक्स किया है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से लेस है, जैसे एसीटोन प्लस अल्कोहल. दोनों इवेपोरेट होने वाले हैं, दोनों इवेपोरेट होंगे. डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन टेकन, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन वेपर प्रेशर, आपको रिजल्टेंट वेपर प्रेशर मिलेगा. सो स्टेटमेंट, at a given temperature, partial vapor pressure of any volatile component is the product of vapor pressure of pure component and the mole fraction of that component. अभी जो सुना है वही है, टोटल वेपर प्रेशर इज PA प्लस PB, या फिर अभी जो राउल्ट्स लॉ यूज किया वही मैंने यहाँ पे यूज किया इंडिविजुअली. टोटल इज इक्वल टू P0A XA, P0B XB. ये इंडिविजुअली वही राउल्ट लॉ था जो मैंने पहले वाले पेज पे आपको दिखाया था. एनी डाउट विद दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस?
इस लॉ पे, इस इक्वेशन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. लेट मी फिनिश अ लिटिल थियरी एंड आई विल शो यू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस. अभी इसी का हम लोग को थोड़ा और डिटेल करना है. नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अभी इसका ग्राफ आप इस तरह से देख सकेंगे. अभी ये एक साथ पूरा ग्राफ मत देखना, कुछ समझ में ही नहीं आएगा. लेट मी शो यू पार्शियली व्हाट इज हैपनिंग हियर. लेट अस इमेजिन वी टेक टू डिफरेंट कंपोनेंट्स एज वी सेड. सो ये अपना सेकंड पार्ट है जिसमें नॉन वोलाटाइल, ओ आई एम सॉरी, टू volatile solutes or components are mixed. अभी आप इसका ग्राफ किस तरह से आता है आप खुद इमेजिन कर सकते हो. इसके लिए हम लोग ने इक्वेशन लिखा P टोटल इक्वल टू A का वेपर प्रेशर प्लस B का वेपर प्रेशर. लेकिन ये हम लोग ने राउल्ट्स लॉ से पहले डिस्कवर किया था. P नॉट A इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट B इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन. सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं. अभी आप लोग इसका अपना एक खुद ग्राफ जैसे पहले किया था ना, वैसे सोच के देखो कि ग्राफ कैसे आ सकता है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक इंडिविजुअली फर्स्ट सब्सटेंस, ओके, इंडिविजुअली फर्स्ट सब्सटेंस आप इमेजिन करो जैसे ए कंपोनेंट है, तो उसका ग्राफ किस तरह से आ सकता है जो हम लोग ने पहले ड्रॉ किया था. क्या नेचर था उस From ग्राफ का? 0 to हाँ, Straight line. परफेक्ट, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू दैट. तो वही स्ट्रेट लाइन अभी मैं यहां पे इमेजिन कर रहा हूं. सो एज्यूम दैट गोज समवॉट लाइक दिस. अभी इमेजिन करो कि ये लाइन, एक सेकंड ना, मैं आपका वो वाला देख लेता हूं सो दैट यू नो डोंट मेक अ मिस्टेक. तो आपका जो यहाँ पे ग्राफ मिले वही ग्राफ वहां पे स्क्रीन पे होगा, तो आपको थोड़ा फीलिंग अच्छा आएगा, समझ में भी आएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ व्हाट आई हैव टेकन, this is for solution number 2. I am developing the graph. फाइनल रिजल्ट स्लाइड पर है, लेकिन यहाँ पे आपको डेवलप करके दिखा रहा हूं. अगर ये ग्राफ ऐसा है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस क्या आएंगे, x2 और x2. कैन एनीवन थिंक? 0 to 1. वेरी गुड, 0 and 1. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. ये नहीं समझा तो हालत खराब हो जाएगा, प्लीज रिमेंबर दैट. x2 हम लोग जब इस तरह से ग्राफ मिलेगा तो इसका टू कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहां पर 0, यहां पर 1. अभी उल्टा सोचो, ये x2 अगर इस तरह से है तो x1 के वैल्यूज क्या रहेंगे? First will be 1 to 1 0. and then 0. So तो it will be inverse. हाँ, अभी इसका ग्राफ आप सोच सकते हैं, isn't it? It's going to come opposite of it. Line. यही ग्राफ लेकिन कुछ इस तरह से आएगा, ऑपोजिट नेचर. एवरीवन एग्रीड? सो ये है आपका P1 वाला ग्राफ. तो अभी क्वेश्चन है कि अगर ये P2 मतलब इस लैंग्वेज में PB और ये P1 मतलब PA, तो P टोटल कहां पर है? P total is the resultant line of these two things. This is P total, which is P1 plus P2. So, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए एक तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो, जो हम लोग करने वाले हैं. लेबोरेटरी में उसको ग्राफिकली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. नाउ परहैप्स यू माइट अंडरस्टैंड और यू माइट इमेजिन कि अलग अलग हम लोग ने अगर मोल फ्रैक्शन यूज किया, फॉर एग्जांपल इफ आई से सम मोल फ्रैक्शन ओवर हियर, तो यहां पर क्या वैल्यू होगी? तो यू कैन इमेजिन, आप एक स्ट्रेट लाइन पास करो और आपको उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी. सो इस वैल्यू पर P2 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू कितनी है और दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है. सो वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द ग्राफ. Has everyone followed this whole thing? So why is P1 lower than P2? Just an assumption. Just an assumption. ऐसा कुछ नहीं है, ऑपोजिट भी हो सकता है. यू कैन एब्सोल्युटली गेट अ रिवर्स ग्राफ आल्सो. दिस इज जस्ट एन assumption. वी आर जस्ट फॉलोइंग अ टेक्स्ट बुक ग्राफ. ये ग्राफ पूरी तरह से उल्टा भी हो सकता है. देयर इज नो सच So रिस्ट्रिक्शन. they can be equal, like इक्वल हो सकता है, लेकिन मतलब स्लोप उनका सिमिलर होगा थोड़ा बहुत, पॉसिबल.
वो किस पर डिपेंड रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट है 57 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन फॉर एग्जांपल, एंड आई हैव मिक्स्ड इट विथ अल्कोहल whose boiling point is 78. तो डिफरेंस थोड़ा काफी अच्छा है, 20 डिग्री का ऑलमोस्ट, तो ग्राफ अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं अगर इसका किसी के साथ जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री है, तो ग्राफ आपके बहुत इस तरह से एकदम नजदीक मिलेंगे। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट आएगा। सो इट विल बी अ मिक्सचर। गॉट इट? Yes, sir. एवरीवन हैज हर्ड ऑफ व्हाट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सुना है सब लोगों ने? क्या करते हैं Yes. उसमें? Yes. व्हाट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस? ये एग्जांपल लेना, एसीटोन मिक्स्ड विथ वाटर सपोज इज देयर। ये आपके पास मिक्सचर है, 57 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, मतलब एक चेंबर में हम लोगों ने इसको लिया मिक्सचर को, तो इसको हीटिंग करना चालू किया, टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर 57 डिग्री पे एग्जैक्टली आएगा, तो पूरा का पूरा एसीटोन बाहर निकल के आएगा, वेपर्स। उस वेपर्स को हम लोग अगर कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, तो अपने को पूरा प्योर एसीटोन मिलेगा। नाउ गो ऑन कंटिन्यूइंग हीटिंग, ऑल एसीटोन इज गॉन। नाउ let the temperature rise to 100 degrees Celsius. Now water will start coming out and water will be obtained as pure substance. ये पूरा प्रोसेस इस ग्राफ पर डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग ने अभी बोला कि इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी दूर है, इसलिए डिस्टिलेशन बहुत इफेक्टिवली होगा। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट विद इन 5 डिग्री रेंज में आ रहा है, 55 and not even 60, I will say 59 degree, then this graph becomes so much close to each other, distillation doesn't become effective. So fractional distillation effective होने के लिए इस तरह के ग्राफ जितने दूर दूर तक है वो अच्छा रहता है। Those who want to take a screenshot, you can take it. So if they are closer, you have to maintain the heat very well then. No, there are some other practical ways of doing it. Not that way. There is something called Soxhlet distillation. Physically, there are different processes. We have to use instruments to separate them. मतलब रेगुलर लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट से सेपरेट नहीं हो सकते वो, उनके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट हीटिंग बहुत स्लोली करना पड़ता है, एंड स्पेशल डिस्टिलेशन apparatus इज नीडेड फॉर दैट। चलो, लेट अस कम बैक टू दिस So- वन। हाँ So बोलो। in this graph, can you please explain how we did the inverse relation? Inverse I- relation, because wherever, what was the nature of the earlier graph? Graph starts from mole fraction 0 and graph reaches maximum value when it is 1. Are you clear with this? Yes, sir. Now check this graph. Here, x2 was 0. x2 was 1. Only focus on x2. So for x2, the graph will go from 0 to 1. Perfect. Yes, sir. And x1 is, read it opposite. When x2 is 1, x1 is 0. And when x2 is 0, x1 is 1. So the graph will start from here, go in this direction. Is it all right? Yes, sir. Understood. Thank I you. hope everyone will understand why are we plotting the graph like that. Perfect. ये सब आपके टेक्स्ट बुक का ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखा है, जो हम लोग ने अभी बड़बड़ किया वही सब यहाँ पे 3 पॉइंट्स में दिया। एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स आल्सो। So, बोलो। but the places that plotted two are random, right? Or like based on other values? Yeah, we are just taking it that way. So I have plotted it x2 0, x2 1 over here. I can do it reverse also. Okay, thank you. That doesn't make a difference. Yeah, next one. Okay, from this graph there is one conclusion. जो हम लोग अभी बोल रहे थे ना, वही लो कौन है हाई कौन है, इसका ये कंक्लूजन है। देखो ये पर्टिकुलर ग्राफ में, ये पर्टिकुलर अगर ग्राफ चेंज हो गया तो ये कंक्लूजन भी चेंज होगा। आई हैव रिटन इट हियर, P total has a maximum value of P2 0. So इस टोटल का मैक्सिमम वैल्यू P2 के साथ मैच होता है, लोएस्ट वैल्यू P1 के साथ मैच होगा। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एज्यूमिंग इन एक्सपेरिमेंट
component 1 is less volatile than component 2. अब हम लोग जो बात कर रहे थे ना, 1 नीचे क्यों है, 2 ऊपर क्यों है, ये है. तो ये एज्यूम किया है अगर अपना एक्सपेरिमेंट उल्टा है तो ग्राफ भी उल्टा मिलेगा. उसमें ये P1 होगा, ये P2 होगा. रिमेंबर दैट. सो देयर इज नथिंग फिक्स ओवर हियर. जो आप लोगे accordingly you will remember it, you will get it. Okay, so we have to assume, explain this thing, that our graph we are getting it this way because of this conclusion. उल्टा वो लोग एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि अगर इस तरह से ग्राफ आता है तो किसका वेपर प्रेशर लोअर है, किसका हायर है, ये भी पूछ सकते हैं. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. देखो P1 का वैल्यू लेस है, P2 का वैल्यू हाई है, तो P1 इज लेस वोलाटाइल, P2 इज मोर वोलाटाइल. आई एम रिपीटिंग. ग्राफ 1 सेकंड, ग्राफ में ये वेपर प्रेशर इस एक्सिस पर है, तो P1 का देखो वेपर प्रेशर लेस है, P2 का वेपर प्रेशर हायर है. सो P1 इज लेस वोलाटाइल देन P2. राइट. अभी आप मुझे सोच के बताओ, इसमें 1 और 2 में बॉइलिंग पॉइंट किसका लो है, किसका हाई है? P2 will be higher. P2 higher. वेपर Goes more प्रेशर इज एस्केपिंग टेंडेंसी. सो 2 की एस्केपिंग टेंडेंसी हायर है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका Lower. रहेगा लोअर. Yes, sir. परफेक्टली उल्टा. क्लियर. आप ये दिमाग में रखना हमेशा. वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो जिसका वेपर प्रेशर हायर, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, वो जल्दी एस्केप होके निकल जाएगा सब्सटेंस से. गॉट इट? सो मच ऑब्जर्वेशन यू कैन सी फ्रॉम सिंगल ग्राफ यू आर ड्राइंग. या एनीथिंग एल्स इन दिस पार्ट? Sir, P1 is considered as the solute का ना? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लिक्विड है, तो सोल्यूट सॉल्वेंट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. वी आर जस्ट सेइंग कंपोनेंट, वी आर नॉट सेइंग सोल्यूट सॉल्वेंट हियर. बाइनरी कंपोनेंट. नाउ अनदर थिंग विच दे आस्क इन एग्जाम, और HSC वालों के लिए थोड़ा नया है क्योंकि ये साल नया ऐड किया है सिलेबस में. ये टॉपिक सिर्फ जेई में होता था, नीट में होता था, अभी यहाँ पे भी आ गया. Composition of vapor phase in equilibrium is determined by the partial pressure of the component. So here we have Y1 and Y2 as mole fractions of the components 1 and 2 in vapor phase, and that is calculated as same once again वैसे ही जैसे अपना राउल्ट्स लॉ था वैसे ही है, लेकिन Y1 Y2 क्या है? P1 upon P1 plus P2 and Y2 is P2 upon P1 plus P2. Let me explain this with equations over here so that you will not forget it again. And I'm giving you a simple chart like thing so that you can understand them. See, what we have here is something like this. Numerical problem में आपको क्या क्या आ सकता है, ये मैं स्कीम दे रहा हूं आपको प्रॉब्लम की, इसको भूलना मत. There are components 1 and 2. इनका नंबर ऑफ मोल्स है N1 N2. इनका मोल फ्रैक्शन रहेगा x1 x2. अभी मैं ये कैलकुलेट करने के फॉर्मूले फिर से नहीं दे रहा हूं. आई होप यू रिमेंबर देम. देन व्हाट वी कैलकुलेट हियर इज वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट. सो P1 is equal to x1 into P1 0 और P2 equal to x2 into P2 0. रिमेंबर ये किसमें है? इन द लिक्विड मिक्सचर. ये उनके इंडिविजुअल है. तो अभी इस पर बेस्ड हम लोग क्या निकालते हैं? P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2. तो आपने ये इंडिविजुअली फाइंड किया, दोनों को ऐड किया, तो आपको टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा. यहां तक सब लोग परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम. अभी वो लोग आपको पूछ सकते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. सो मोल फ्रैक्शन इन वेपर, ऊपर जो कैलकुलेट किया वो लिक्विड था, अभी ये वेपर फेज में पूछेंगे, तो इसके लिए रहेगा Y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P1 प्लस P2 एंड Y2 विल बी इक्वल टू P2 अपॉन P1 प्लस P2.
तो स्टेप वाइज देखो आपको ये बरोबर से समझा कि नहीं। ये किस पर से निकाला हम लोगों ने, y1 वैल्यू इस पर से। सो ये जो P1 था वो यहां पर है, और दोनों का टोटल मतलब P टोटल नीचे है, और ये जो था वो यहां पे यूज किया। सो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपका स्कीम इस तरह से आएगा। अभी अगर सिंपल सम्स है तो सिर्फ यहां तक रहेंगे, और थोड़े लेंथी बनाने उनको तो यहां तक जाएंगे। परफेक्टली So क्लियर? this is for gas phase, ना? हाँ, मतलब इसका मीनिंग बताता हूँ, प्रैक्टिकल मीनिंग आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर आपके पास ये कंटेनर में आपने लिक्विड लिया है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, ये मिक्सचर है आपके पास, ओके। अभी इमेजिन करो कि ये जो लिक्विड 1 है ये इवेपोरेट हो रहा है, ये लिक्विड 1 है सपोज, और लिक्विड 2 वो भी वोलाटाइल ही है, तो लिक्विड 2 भी इवेपोरेट होगा। तो नाउ यू कैन सी यहां पर मेरे को लिक्विड 2 के कंपोनेंट्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड 1 के कम दिखाई दे रहे हैं। सो ये जो ऊपर जो है इसका जो मोल फ्रैक्शन है ये है y2 और ये है y1। ये किस पर डिपेंड रहेगा, उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पर। आया समझ में बात, सबकी समझ में आ गई? परफेक्टली sir. क्लियर। तो अभी देखो इसमें वोलाटाइल कौन है ज्यादा, जिसके ज्यादा वेपर दिखाई दे रहे हैं, तो ये मोर वोलाटाइल है, क्योंकि देखो उसके ब्राउन कलर के वेपर ज्यादा है और रेड कलर के मैंने कम दिखाए हैं, तो ये लेस वोलाटाइल है। इज इट ऑल राइट? परफेक्ट। प्रैक्टिकली देखो मीनिंग समझा कि नहीं आपको? ऑल राइट एवरीवन, जिनको चाहिए मतलब सब लोग कंपलसरी स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये फॉर्मूले आप स्टोर करके रखो, आपको बहुत रिक्वायर्ड है। इसी पे आपको न्यूमेरिकल से अभी जो मैंने ये दिखाया। चलो immediately let us take numerical problems on this before we go to the last remaining theory part. These are from your page number 13 of your book. These problems are newly added in textbook. पहले ये एनसीईआरटी में थे, जेई में हम लोग करते थे, अभी एचएससी वालों को भी आ गए। चलो प्लीज रीड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखने में बहुत लंबा है, रीड करने के लिए आपको कंटाला आएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। प्रॉब्लम इजी है। दो सब्सटेंसेस है, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है 200 एंड 415। तो देखते जाओ साथ में डेटा। P degree of CHCl3 is so much, CH2Cl2 is 415. Molar masses are given 25.5 ग्राम एंड 40 ग्राम, वो भी लिखा है। मोलर मासेस हम लोग ने कैलकुलेट किया है। अभी आपको पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब y1 y2। सो स्टेप्स देखते जाओ। अभी पहले जो मैंने दिखा है वही स्टेप से देखो। पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.470। अभी आपको पता है कि एक मोल फ्रैक्शन आपको अगर मिल गया तो सेकंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय फ्रॉम 1। बस अभी राउल्ट्स लॉ टोटल के लिए यूज करो, x1 p01 प्लस x2 p02। ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये मिल गया आपको टोटल। और अभी बोला था मैंने वेपर प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए 62.4 डिवाइडेड बाय 347.9, 0.18 एंड 0.82। कैन यू टेल मी ये दोनों में से ज्यादा वोलाटाइल कौन है? So is it the first one? जिसका वैल्यू हायर है, जिसका वैल्यू हायर है वो ज्यादा वोलाटाइल है। मैंने कंक्लूजन लिखा है, ये एग्जाम में आता है आपको। ये समझने के लिए आप यहां तक आने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको देख के भी बोल सकते हो। वेपर प्रेशर 200, वेपर प्रेशर 415, वेपर प्रेशर हायर, एस्केपिंग टेंडेंसी हायर, CH2Cl2 is greater.
परफेक्टली क्लियर, कंक्लूजन समझ में आ रहा है सबको? Yes. Second one, this is from the first one I did was from NCERT. So, This but is this is from inversely proportional to boiling point. boiling point. Boiling Correct, point ही correct, आया. correct, correct. Boiling point is inverse proportional. चलो एक वैसे ही सम है, थोड़े नंबर्स इजी है यहाँ पर जीटीबी का, इसके लिए बाकी मेथड सेम है. देखो ए एंड बी का आपको वेपर प्रेशर दिया है, कॉम्पोजिशन फाइंड करना है. उन्होंने यहाँ पे अभी मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है. तो क्या किया, देखो टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन 600. सो आई माय लेफ्ट हैंड साइड हियर आई नो इट ऑलरेडी. मैं यहाँ पर एक्स ए अननोन है मेरा, तो एक्स बी दो अननोन नहीं लिख सकते, इसके लिए हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया है 1 - x. से. सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला, वैसे ही आपको बी मिलेगा. देन वंस अगेन यू फाइंड इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स. सो 0.4 into 450, 0.6 into 700, और फिर आप y वाला फाइंड करो, 180 upon 600 and subtract from it. I'll try to show everything together. Just zoom out a little bit. Yeah. देख लो एक बार ये पूरा समझ में आया कि नहीं. This is second way of asking a problem. टोटल देके आपको इंडिविजुअल पूछेंगे. First one was straightforward. Second one calculating mole fraction. अभी थर्ड में और एक केस आपको मिलेगा. This is a third problem. This is also common in GTB and NCERT. दोनों में सेम प्रॉब्लम है, मतलब GTB वालों ने कॉपी मारा है वहां से. अभी अपने पास है 3 मोल ऑफ X, 1 मोल ऑफ Y, और दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, इसका है 550 जब ये मिक्सचर होता है. When the mixture is 4 mole and 1 mole, it was 560. So देखो आपको केस समझ में आया कि नहीं. जब मैं पहला मिक्सचर बना रहा हूं, उसमें मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स है 3 and 1. टोटल वेपर प्रेशर वाज दिस मच. अभी इसके लिए आप अपना एक इक्वेशन सेट बनाओ. मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, राउल्ट्स लॉ, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल इक्वेशन बनाओ. यूज केस नंबर 2 नाउ and make another equation. Now these two equations you can solve by simply subtracting, or in another way like simultaneous equation solving. Subtract 2 and 1. Luckily यहाँ पर देखो ये 1 P naught Y है, वो कैंसिल हो जाएगा और आपको पहले P naught X का आंसर मिलेगा. उस X को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, आपको Y का आंसर मिलेगा. This same sum with changed numbers came once in NEET, और ये पहला वाला जो सम किया था ऐसे एक बार जेई में आया था. इनफैक्ट ये टाइप जेई में और नीट में 2-3 बार रिपीट हुआ है. नंबर्स अलग अलग हैं. इट्स अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर देम. आई होप न्यूमेरिकल्स आर ओके. बहुत सिंपल है वैसे न्यूमेरिकल्स इसके. नाउ आई होप दिस स्लाइड विल बी लिटिल बेटर क्लियर देन व्हाट आई शोड यू इनिशियली. More conclusions from Raoult's law. Raoult's law is applicable when the two components form a homogeneous mixture, and that should be what is called as ideal. Ideal क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद. Law is not applicable if they are immiscible with each other. That's obvious. Vapor phase contains vapor of both the components but richer in a more volatile component. ये हम लोग ने अभी न्यूमेरिकल में देखा. And if we are changing vapor pressure with temperature, then it is given by Clausius-Clapeyron equation. इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सिर्फ जेई में करेंगे. इसके न्यूमेरिकल्स एचएससी में नहीं है, सीईटी में नहीं है, नीट में भी नहीं है. उन्होंने सिर्फ एक बार जेई में इसका क्वेश्चन पूछा था. सो पास्ट एग्जाम में ये आपको देख सकेंगे. यू विल बी एबल टू डू इट. इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम. खाली कैलकुलेशन थोड़ा भयंकर है बिकॉज लॉग एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड. We come to the last part of the topic, ideal and non-ideal solution. It's a very easy and very scoring topic. ये last year तक HSC में नहीं था,
लास्ट ईयर उन्होंने न्यू सिलेबस में HSC में इसको ऐड किया. This was only in JEE and NEET. Now it's in HSC also. Whenever we check ideality of a solution with respect to Raoult's law, अभी तक जितना हम लोग ने सुना वो सब कुछ आइडियल बिहेवियर था. मतलब P total equal to P1 plus P2. जैसे वेपर प्रेशर मिलेगा हम लोग ऐड करेंगे, रिजल्टेंट प्रैक्टिकली वैसे ही मिलेगा. रियलिटी में ऐसा होगा ऐसे नहीं. सो उसके लिए हम लोग को 3 कंपोनेंट्स देखने पड़ते हैं. नंबर 1, A और B अगर कंपोनेंट्स है, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन AA, BB and after they mix AB. Number 2, what is the enthalpy change when you make the solution? Is the heat evolved or absorbed, exothermic or endothermic? When you mix the components, are the volume added correctly or volume reduces after mixing? ये possible है hydrogen bonding के बाद. For example, if you take 20 ml alcohol and mix it with 80 ml water, the volume is never 100 ml. The volume is around 96 to 97 ml. 2 या 3 ml हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग. सो ये थोड़ा समरी था. अभी हम लोग एक्चुअल देखते हैं. नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशन. बहुत सिंपल है, पे अटेंशन. मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरैक्शंस विल बी आइडेंटिकल बिफोर एंड आफ्टर. डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी 0. डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0. Such solutions are called ideal solution. मैं आपको पॉइंट वाइज दे रहा हूं तो आपको पैराग्राफ लिखने में बहुत इजी होगी. अभी जो हम लोग ने ग्राफ देखा था वो आइडियल का ही ग्राफ था. लॉट मेनी एग्जांपल्स आर देयर फॉर आइडियल. नीट में आज तक इस पे एक ही हमेशा क्वेश्चन पूछा है. वो लोग एग्जांपल देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये आइडियल है या नॉन आइडियल. 2018, 2019, 2020 तीनों साल नीट में सिर्फ यही क्वेश्चंस आए हैं. सो वेरी इजी सेक्शन फॉर स्कोरिंग. आइडियल बिहेवियर. Sir, हाँ बोलो. so basically the solutions which don't react with each other, no? There is no reaction. There is no chemical reaction. There is formation of hydrogen bond, van der Waals forces. That is what you call as interaction. यहां पर क्या होगा, जैसे बेंजीन टोल्यूइन है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, तो दोनों का नेचर सेम है, तो दे विल जस्ट प्लेनली मिक्स, कुछ नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ. लेकिन अगर अल्कोहल प्लस वाटर लिया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा. मतलब AA, BB एंड AB इंटरैक्शंस विल बी डिफरेंट. वो हम लोग देखेंगे. अभी नॉन आइडियल में वही डिटेल करने वाले हैं. अभी नॉन आइडियल मतलब क्या होगा. मैग्नीट्यूड बिटवीन AA, BB एंड AB विल डिफर. मतलब AA और BB मिक्सिंग से पहले जो मैग्नीट्यूड था वो मिक्सिंग के बाद नहीं रहेगा, कुछ अलग ही वैल्यू मिलेगा. डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल हैव सम वैल्यू, जीरो नहीं होगी. एक तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी. वॉल्यूम एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अकॉर्डिंग टू दिस दो पॉसिबिलिटी उन्होंने डिस्कवर किया है. एक इस तरह से, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो वो आपका आइडियल बिहेवियर है. रियलिटी में इस तरह से कॉनकेव कर्व आपको मिलेगा. देखो वैल्यू हर जगह पर हायर आपको दिख रही है. दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन. पॉसिबिलिटी कि वो इस तरह से वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव डिविएशन. तो मैंने आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखाने से पहले सिंपल वाले ग्राफ दिखाए कि आप ग्राफ रिकॉग्नाइज कैसे करोगे. तो वैल्यू हायर हो गई, पॉजिटिव डिविएशन. वैल्यूज डिप डाउनवर्ड्स, नेगेटिव डिविएशन. अभी डिटेल में करते हैं दो पैराग्राफ्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव के. बहुत इजी है. पॉजिटिव डिविएशन. AB interactions are lower before mixing. So after mixing they will be lower, before mixing they are higher. Delta H of mixing is positive, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है. डेल्टा V of mixing is positive, मतलब वॉल्यूम ऐड होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. ऐसे कंडीशन में आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा.
green lines were ideal behavior and the blue lines are after positive deviation. ये आपको ग्राफ एग्जाम्स में ड्रॉ करने आते हैं, सो प्लीज रिमेंबर देम, एचएससी में ये आ सकते हैं. नंबर 2, negative deviation, everything opposite. Interactions are greater. For example, acetone and chloroform, when you mix, they form very strong hydrogen bonds. So ये interaction greater है किससे? 2 एसीटोन और 2 क्लोरोफॉर्म से अलग से. So अगर 2 एसीटोन मॉलिक्यूल लिए थे तो उसमें इंटरेक्शन वीक था, 2 क्लोरोफॉर्म का इंटरेक्शन वीक था, लेकिन क्लोरोफॉर्म एसीटोन का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है. सो इसमें प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहता है, वॉल्यूम मिक्सिंग निगेटिव मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ग्राफ देखो उल्टा तरह से आएगा, एवरीथिंग डिप्स डाउन. पहला ही एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एसीटोन का. आई एम गिविंग यू दिस पॉइंट वाइज, इतना ही याद रखो, इतना ही आप करो. HSC स्टूडेंट्स आल्सो यू कैन रिमेंबर दीज लाइक शॉर्ट नोट्स, रेडी टू राइट आंसर्स. और नीट वालों को, जेई वालों को ये पॉइंट्स समरी जैसा ही, आपको सिनॉप्सिस ही है ये सब. एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दिस, अभी जो मैं पार्ट ले रहा हूं ये HSC में नहीं है, ये सिर्फ जेई नीट वालों के लिए है. गायब मत होना, लेकिन रुको जरा. अजियोट्रोपिक मिक्सचर. Azeotropic mixture, azeotrope is a Latin word for constant boiling mixture. मतलब ऐसा मिक्सचर जो हम लोग अगर बॉइल करेंगे तो द कंपोनेंट्स विल नॉट सेपरेट. सो हम लोग ने स्टार्टिंग में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बात किया था, वो इसके लिए था. अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते तो अपने अपने टेम्परेचर पे सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका अजियोट्रोपिक मिक्सचर बन गया तो it is impossible to almost separate those components. Now this is possible due to several reasons. Number 1, ideal solutions will not form azeotrope. तो आपको समझ में आ रहेगा azeotrope कौन फॉर्म कर रहा है? Mixtures with positive or negative deviation from Raoult's law. Azeotrope solution will be formed only at certain composition. अगर आपने वो कॉम्पोजिशन की जगह कुछ दूसरा बनाया तो वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा. एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस. एनी डाउट इन दिस 4 पॉइंट्स? मैं एग्जांपल दे रहा हूं नेक्स्ट पेज पे. टाइप नंबर 1, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप सॉल्यूशन विल बी लेसर देन द ओरिजिनल कंपोनेंट्स, और ये कभी दिखेगा? पॉजिटिव डिविएशन में दिखेगा आपको. लेट मी शो यू दिस एज एग्जांपल. आप टेबल देखो, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5. व्हेन यू मेक कोइंसिडेंटली अ मिक्सचर ऑफ 95.57% इथेनॉल, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है. और इसका बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान दो, ये वैल्यू इन दो वैल्यू से लेसर वैल्यू है, इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग. 373 से लेस है, 351.5 से भी लेस है. कैन एनीवन थिंक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैल्यू? The whole solution only will boil away before हाँ, तो अब separating जब it. आप 351.15 टेम्परेचर पे आओगे ना, तो अल्कोहल प्लस वाटर दोनों बाहर आएंगे. अल्कोहल और वाटर सेपरेट नहीं कर सकते. और देखो ये वैल्यू अल्कोहल के वैल्यू के काफी नियर मोस्ट है. देखो, रीजन इज you have so much of alcohol present in it, so the value almost represents the boiling point of that component. इसका ऑपोजिट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. यहां पर भी मैं आपको सीधा वैल्यू टेबल दिखाता हूं, वो अच्छा रहेगा. मेजर थिंग, दिस इज शोन विद नेगेटिव डिविएशन वैल्यू 373, 188. अगर आपने 20.3 लिया तो यहां वैल्यू हो जाता है 383. दिस वैल्यू इज हायर देन ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम. यहां पर भी आप देख सकते हो
मोर कंपोनेंट इज वाटर, यू कैन सी लगभग 80% के आसपास वाटर है, तो देखो वैल्यू वाटर के नजदीक है. दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. एप्लीकेशन मतलब एक्चुअली ये नेगेटिव पॉइंट्स ही है. इनफैक्ट these constituents cannot be separated by fractional distillation. If you try to do that, it's not possible. In fact, there are like other methods possible to separate. और ये substance को हम लोग for example अल्कोहल में इसे कहते हैं rectified spirit. ये पूरे टॉपिक का लास्ट वाले पार्ट का ये सिंगल समरी दे रहा हूं आपको. Go through it. Don't switch off the screen. See if you can remember everything. So is it possible for delta H to be positive and delta V to be negative in Not the same? possible. Not possible. नहीं, वैसे वाला केस नहीं मिलता है.